Good morning students. Before this we have already studied how to find out the adjoint of any matrices. Now today in this lecture I will tell you how to find out the solution of a system of linear equation by the matrix method. You have to find out the solution of the equation by the matrix method means you have want to find out the value of x, y and z. Now the question is solve the system of the linear equation by the matrix method. These are the three equations given to you. You have to find out the value of x, y and z by matrix method. Now how to solve this question? First we will make a matrix A. Matrix A means the coefficient of all the equation x, y, z का coefficient लिखेंगे. We will find out the write the matrix A. 3 minus 2 3 2 1 and minus 1 4 minus 3 and 2. आपने ये A मैट्रिक्स लिखा. Now what is B मैट्रिक्स? B मैट्रिक्स is equal to 8 1 4. equal to के बाद जो भी वैल्यू लिखी है वो किस में लिख दो? B मैट्रिक्स में. X मैट्रिक्स we will specify what are the variable we want to find out. हम कौन से वेरिएबल निकालना चाहते हैं? We want to find out X, we want to find out Y, we want to find out Z. हम X, Y, Z निकाल रहे हैं. Now here I have written AX is equal to B. What does it mean? Matrix A multiplied by matrix X will be equal to the B matrix. See, A matrix multiplied by X. आपको पता है multiplication कैसे करते हैं? First row, first column. 3x minus 2y plus 3z is equal to B means is equal to 8. हमने first equation आ गई. 2x plus y minus z is equal to 1. See our second equation. 4x minus 3y plus 2z is equal to 4. This is our third equation. So this statement we have written ax plus is equal to b. If ax is equal to b, then x is equal to a inverse b. या तो इसको इधर ले जाने का सोचो या a inverse से दोनों तरफ अगर आप multiply कर देते हो तो आपको पता है कि a inverse multiplied by a into x is equal to a inverse b. और हमें पता है कि a inverse a क्या होता है? I. So this is identity matrix multiplied by x. So x will be equal to a inverse b. मतलब if I want to find out the x matrix, I have to multiply a inverse by b. A inverse पहले ही आपको लेक्चर में बताया how to find out. A inverse is equal to adjoint of a upon determinant of a. सबसे पहले आप determinant of a निकालो. मैंने इस वाले मैट्रिक्स को इसको डिटर्मिनेंट बनाने के बाद रो 1 के अलोंग एक्सपैंड किया है. सी आई हैव एक्सपैंडेड अलोंग रो 1 3 2 minus 3. नाउ माइनस ऑफ माइनस 2 विल बिकम प्लस 2. इसके साथ का कॉलम और इसके साथ की रो क्या हो गई? हाइट. दिस इज 4 प्लस 4. नाउ लास्ट इज 3. इसके साथ का रो और कॉलम हाइड कर दो. माइनस 6 एंड माइनस 4. दिस इज माइनस 10. अब आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे दिस इज माइनस 3 प्लस 16 माइनस 30. वी आर गेटिंग माइनस 17. माइनस 17 इज नॉट इक्वल टू 0. अगर डिटर्मिनेंट a 0 के इक्वल होता था तो क्या होता था? इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स. अब क्या हो गया? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मींस द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स एग्जिस्ट. अब इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट तो निकाल लिया. नाउ व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू फाइंड आउट द एडजॉइंट. और एडजॉइंट कैसे निकालते थे? सबसे पहले हमने वो 9 कोफैक्टर निकाले. पहला कोफैक्टर a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33. ये आपको मैं पहले ही प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ कैसे निकालते हैं. आपने 9 एडजॉइंट्स निकाले. ऑड वाली जितनी वैल्यूज होती थी इनके साइन चेंज हो जाते हैं. बिना साइन चेंज हुए वो क्या होते हैं? माइनर. जब आप उनका साइन चेंज कर देते हो इनका तो ये क्या बन जाते हैं? कोफैक्टर. नाउ व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ दिस? एडजॉइंट ऑफ दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ दिस. इन कोफैक्टर का ट्रांसपोज तो देखो. First column I have written is first row, second column as a second row and third column as a third row. पहली कॉलम को पहला रो बना दिया, दूसरी कॉलम को दूसरा रो बना दिया, तीसरी कॉलम को तीसरा रो बना दिया. ये आ गया एडजॉइंट ऑफ A. Now A inverse is equal to adjoint A upon determinant A. और हमें कैसे निकालना है? X is equal to A inverse B. A inverse आपका आ गया 1 upon determinant A into adjoint A. ये रहा adjoint A. Multiplied by B. B कौन सा था? ये वाला. Now first row, first column, ये लिख दिया मैंने. Second row, second column, third row, third column. ये लिखा.
Now this is minus 17, 34, minus 34 and minus 51. Divided by minus 17, 1, 2 and 3. हमने हमारी वैल्यू आ गई, तो x is equal to 1, y is equal to 2 and z is equal to 3. अब एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि x is equal to 1, y is equal to 2, z is equal to 3, ये करेक्ट वैल्यू आई है. हम किसी भी एक इक्वेशन में इसको सब्सटीट्यूट करके रख के चेक कर सकते हैं. अगर LHS RHS के इक्वल आ गया, इट मीन्स दैट आवर वैल्यू इज करेक्ट. अदरवाइज फिर आप अपना चेक करो कि आपने डिटर्मिनेंट गलत निकाला है कि एडजॉइंट गलत निकाला. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ द क्वेश्चन इज क्वेश्चन है इफ a is equal to see if a is equal to 1 1 1 1 0 2 then 3 1 1, find a inverse, then solve the system of equation. लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखेंगे उसमें. फर्स्ट है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6. सेकेंड इज x प्लस 2z इज इक्वल टू 7 एंड द थर्ड इज 3x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू व्हाट? That is equal to 12. Now this is the question. We have to solve this question. A given to us, we have to find out the A inverse, then we will solve the system of the linear equation. Before solving this question, just to check the A is with the coefficient of this or not. इसके coefficient और A का जो मैट्रिक्स बना है दोनों सेम होगा कि नहीं? 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 0 2 3 1 1 3 1 1. बिल्कुल बढ़िया. इसके कोएफिशिएंट से जो हम A मैट्रिक्स बना रहे थे वही A मैट्रिक्स इन्होंने हमें दिया है. अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है x, y and z. मेथड बिल्कुल सेम है. फर्स्ट यू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ A. डिटर्मिनेंट ऑफ A करने के लिए क्या करो? अब इसको रो 1 के अलोंग एक्सपैंड कर देते हैं. तो 1, ठीक है, उसके साथ का कॉलम और उसके साथ की रो हाइड कर दो. 0 -2, ओके, देन -1. सेकेंड वाला आपको पता है A1 2 की पोजीशन है, माइनस आ जाएगा, ये हाइड करा. 1 -6. थर्ड हमने +1 लिखा, इसके साथ का कॉलम इसके साथ की रो हाइड कर दी. 1 -0. बढ़िया. अब इसको देखो, दिस इज -2, दिस इज -5 + 5 एंड +1. अब 6 - 2 दैट इज इक्वल टू 4. आ गया भाई. डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 4, इट इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस A इनवर्स एग्जिस्ट. अब नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट? एडजॉइंट ऑफ A. एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये 9 कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे. अब इन 9 कोफैक्टर्स को पहले हम निकालते हैं. ठीक है, A11 तो हमें पता चल जाएगा, ये तो यहीं से है, बाहर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं होती. दिस इज -2, this is -5 and this will be 1 + 1. आपको पता है कि ये 1 2 है, ऐड करके ऑड आ रही है वैल्यू, तो इसका साइन हो जाएगा चेंज. अब A21 निकालो, तो ये इसके साथ का रो और इसके साथ की कॉलम हाइड कर दो. 1 - 1 दैट इज इक्वल टू व्हाट? 0. A22 निकालने के लिए ये और ये हाइड कर दिया आपने. दिस इज 1 - 3. 1 - 3 कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू -2. फिर आपके बाद A22 निकालो, दिस एंड दिस. 1 - 3 ये भी हो गया. 1 - 3 दैट इज इक्वल टू -2. देखो यहाँ साइन चेंज हो रहा था, तो 0 के साइन का कोई मतलब नहीं बनता. 2 3 में ये साइन चेंज कर दूंगा. एक बार और चेक कर ले. 2 2 में ये रो और ये हाइड. दिस इज 1 - 3 और इसमें ये और ये हाइड हो गया. 1 - 3 इट्स करेक्ट. Now A31 we have to find this column and this row we will hide. 2 - 0 that is equal to 2. ये वाले में ये हाइड कर देंगे. 2 - 1 that is equal to 1. पर फिर ये ऑड पोजीशन है तो इसके साइन चेंज कर दो. थर्ड वाला ये और ये हाइड करो. 1 - 0 सॉरी 0 - 1 दिस इज -1. अब A32 पर देख लो, हमने साइन चेंज किया था. 2 - 1 हाँ कर दिया.
अब we have to find out the adjoint of A. Adjoint of A इसका ट्रांसपोज लिख देती हूँ डायरेक्टली, -2 0 2 5 -2 -1 1 2 and -1. We have got adjoint A. Now we will find out A inverse. तो how to find out the A inverse? ये लिख रही हूँ बेटे में. A inverse is equal to adjoint of A upon determinant of A. 1/4 लिखा. X is equal to A inverse B. अब B inverse हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1/4. अब B के लिए हमने क्या किया? -2 5 1 पूरा लिख लो. 0 -2 2. This is 2 -1 -1 multiplied by B matrix. What is our B matrix? मैंने लिखा नहीं था, आप यहाँ लिख दो बेटे. B matrix है 6 7 and 12 equal to के बाद वाला. और X matrix कौन सा था? X Y and Z, जैसे पिछला निकाला. तो यहाँ पर आप B मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो. दिस इज 6 7 and 12. मल्टीप्लाई कर दो बेटे इसको. X की जगह आप लिखो X Y Z 1/4 मल्टीप्लाई करो. -12, ठीक है, ये हो गया हमारा 0 और ये हो गया +24. ओके जी. अगला वाला देखें. सेकेंड रो. 6 5 30 -14 and this is minus, ठीक है. 6 5 30 -14 and this is -12. Okay, this is 6 7 2 14 and -12. सॉल्व कर लें. 1/4. इसको सॉल्व करके बताना कितना आ रहा है. -12 + 24 इट इज इक्वल टू 12. ये कितना हो गया हमारे पास? 26. 30 में से 26 गया तो 4 और ये कितना हो गया बेटे? ये हो गया 8. Now the divided by 4, so the value of x is 3, the value of y is 1 and the value of the z is 2. Like this we have calculated the x, y and z for the second type of equation. When the a is given to you, you have to find out the a inverse and according to that you have to solve the equation. Now the third type of the question is this. Same procedure we have to follow, but the thing is, see, A is equal to this matrix. Find A inverse and solve the system of the equation. Check the equation. 2 1 -3 3 2 1 2 1 -3 3 2 1 1 2 and -1. अगर आप इससे A मैट्रिक्स बनाते तो इससे ये A मैट्रिक्स ऐसे बनता. 2 1 -3 3 2 1 और 1 2 और -1. सी आपका ये बनता. बट आपको तो क्वेश्चन में ये ए मैट्रिक्स दिया. अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखूं, इफ दिस इज द ए मैट्रिक्स, दिस इज ए ट्रांसपोज, मतलब जो आपको गिवन है इक्वेशन दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है. तो आपसे वो ये कह रहे हैं कि इफ ए इज दिस मैट्रिक्स, फाइंड ए इनवर्स एंड सॉल्व द इक्वेशन. आपको इक्वेशन सॉल्व करनी. अगर आपको ए इनवर्स निकालना है तो आप थोड़ी देर के लिए ए ट्रांसपोज को भूल जाओ. ए इनवर्स तो आप इसी ए मैट्रिक्स से ही निकालोगे. हाउ टू फाइंड आउट द ए इनवर्स देन? फाइंड आउट डिटर्मिनेंट ऑफ ए. मैंने क्या किया देखो, आई हैव एक्सपेंडेड थ्रू द रो 1. मैंने रो 1 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर दिया. आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ए एज -16. सी 2 -2 and -2 -3. This will be equal to -1 and +6. This is 1. So here 1 + 6 that is equal to 7. जब मैंने simplify किया, this is equal to -16. Now I have calculated the cofactor for this matrices. इसके लिए मैंने cofactor calculate किया. पहले वाला a11 आ गया -4, a12 -5, 7 4 1 -11. Similarly for this also. Now we have to calculate the adjoint of A. मतलब we will write the adjoint of A. और already I have told you adjoint of A is the transpose of this cofactor. मतलब इसका transpose लिख दो. -4 4 and 4. This will be -5 1 and -3. This is 7 -11 and this is 1. This is adjoint of A I have got. Now what A inverse I will calculate. A inverse क्या होता है? Adjoint A upon determinant A. 1 upon -16. Now I have written adjoint of -5 1 and -3 7 -11 और 1. अब सुनना ध्यान से. ये इक्वेशन कैसे बनी? ये ax is equal to b नहीं है. ये क्या है?
A ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू b, है ना भाई। ये जो मैंने कोएफिशिएंट लिखे थे ये A का ट्रांसपोज था, तो हमारी इक्वेशन कैसे बनी कि जब A ट्रांसपोज X मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हुआ, X मैट्रिक्स आपको पता है दैट इज X, Y and Z, and what is the B matrix? The B matrix equal to 13, 4 and 8. इस वाले क्वेश्चन में ये चीज आपको बहुत केयरफुली देखनी है कि इन दोनों के कोएफिशिएंट सेम नहीं है, ये वाले इसके कोएफिशिएंट इसके ट्रांसपोज के इक्वल हैं। तो मैंने लिखा A ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय X इज इक्वल टू B। तो जब X आएगा दैट इज A इनवर्स का ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय B। जब आप इसको इधर ले जाओगे तो ये आ जाएगा A ट्रांसपोज का इनवर्स या A इनवर्स का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू B। अब A इनवर्स का ट्रांसपोज लिखो, व्हाट इज योर A ट्रांसपोज में आपको पता है बाहर की स्केलर वैल्यू का कुछ नहीं होता, 1/-16 ऐसे लिखेंगे। अब A इनवर्स ये है तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा -4, पहले कॉलम को पहले रो में लिख दो, -5, 7, 4, 1, -11, 4, -3 and 1। ये देखो ये आपका A इनवर्स आ गया, इसको आप B से मल्टीप्लाई करो, व्हाट इज योर B 13, 4 and 8। Now x is equal to x, y and z with 1/-16 हमने A इनवर्स का ट्रांसपोज कर दिया और मल्टीप्लाई करेंगे। अब 13 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो जाएगा, 4 3 are 12, 12 का 2 कैरी विल बी 1, 4 52 -52 -20, this is 7 7s are 49, 7 8s are 56 plus 56। ओके, अब यहाँ पे फिर वही बात +52, दिस इज +4 एंड दिस इज -88। फिर थर्ड वाला दिस इज ऑल्सो +52, दिस इज -12 +8। इसको सिंप्लीफाई कर दो, 1/-16 देखो कितना आ रहा है 52, दिस इज इक्वल टू -16, ठीक है जी। 56, 88 में से 56 -1 2, 5 6 7 8 32 -32। अब यहाँ पे हो गया 60, 60 -12, 10 में से 2 गया 8, 48, तो दिस इज इक्वल टू +48। तो ये आपका आ गया, जब आप -16 से डिवाइड करोगे दिस इज 1, this is 2 and this is 3। It means that the value of x is equal to 1, the value of y is equal to 2 and the value of z is -1, sorry, -1, -2 and z is equal to 3। So this is the question, third type of question to find out the A inverse। Now the fourth type of the question is find the product of the matrices। Matrix A is given to you, matrix B is given to you, and then solve the equation। These three are the equation by matrix method। Now what we have done, first they have said that find the product of the matrices। So we will find out the product of the matrices means matrix A multiplied by matrix B, A multiplied by B। मैंने A को B से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। सिमिलरली थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, third row second column and third row third column। Okay, this we have multiplied, so AB we have got 152 0 0 0 152 0 0 0 152 means we have got 152 multiplied by the identity matrix। Okay, identity matrix we have got, so what I have written here, AB is equal to 158 to I means that is the identity matrix। Now with the help of this we have to solve the equation। इसकी help से हमें equation solve करना है। So how we will solve it in this question? We will not find out the adjoint A upon determinant A। बहुत अच्छी चीज दी हुई है कि मल्टीप्लाई करने को बोला है, मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी हेल्प से हमें इनवर्स निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हम A इनवर्स निकालने के लिए adjoint A upon determinant A नहीं करेंगे। क्या करेंगे, AB is equal to 152 I आया,
मल्टीप्लाइंग A इनवर्स बोथ द साइड, मैंने देखो दोनों तरफ A इनवर्स मल्टीप्लाई किया, A इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय A मल्टीप्लाइड बाय B इज इक्वल टू 152I मल्टीप्लाइड बाय A इनवर्स। आपको सबको पता है कि A इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय A इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, B 152I A इनवर्स। अब इसके बाद आप सोचो कि आइडेंटिटी से अगर कोई चीज मल्टीप्लाई होती है तो सेम रह जाती है। अब यहाँ A इनवर्स रहने दिया और 152 को B के नीचे ले आए, इसका मतलब ये हुआ कि A इनवर्स इज इक्वल टू B मैट्रिक्स B डिवाइडेड बाय 152। सो मैंने क्या लिख दिया, A इनवर्स इज इक्वल टू 152, 1 अपॉन 152 एंड दिस इज द मैट्रिक्स B। कौन सा है, ये रहा मैट्रिक्स B, ये देखो A इनवर्स इज इक्वल टू B मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय 152, ये रहा B मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय 152, मतलब ऐसे लिख दिया इसको 1 अपॉन 152 मल्टीप्लाइड बाय B मैट्रिक्स। ओके, अब A इनवर्स आपके पास आसानी से मल्टीप्लाई करके आ गया। अब आपको सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन था, मतलब आपको तो इक्वेशन सॉल्व करनी थी और x, y और z की वैल्यू निकालनी थी। आप देखो ये तो A मैट्रिक्स है जो इसके कोएफिशिएंट के साथ मैच कर रहा है, ठीक है, ये B मैट्रिक्स है। वैसे जनरली इक्वल टू के बाद वाले का नाम हम B मैट्रिक्स देते थे, बट इसमें क्योंकि क्वेश्चन में आपको B मैट्रिक्स लिखा हुआ दे दिया तो इसका नाम C मैट्रिक्स दे दो। तो आपके पास क्या बनी इक्वेशन, मैट्रिक्स A मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स X इज इक्वल टू C, तो X इज इक्वल टू A इनवर्स C। A इनवर्स आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, A इनवर्स ये लिख दिया, देखो मैंने इसकी वैल्यू। नाउ मल्टीप्लाइड बाय C व्हिच इज C -3, 4 एंड 6, हमने ये कर लिया -3, 4 एंड 6। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो वी विल गेट दिस वैल्यू। हमें तीन वैल्यू मिल रही है, 152 -152 एंड 76। मैंने 152 से डिवाइड किया तो आई एम गेटिंग 1 -1 एंड -1/2। सी here we are having the variable 1 upon x, 1 upon y and 1 upon z। तो ये x में मैंने क्या लिखा, 1 upon x, 1 upon y and 1 upon z। 1 upon x is equal to 1, तो x की वैल्यू 1 आ गई। 1 upon y is equal to -1, so y is equal to what, -1। 1 upon z is equal to 1 minus 1/2, so z is equal to -2, so the value of x is 1, the value of y is -1 and the value of the z is equal to -2. Now in this lecture we have studied how to solve the system of the linear equation by the matrix method, and there are 4 different types of the question which I have discussed you. पहला क्वेश्चन, दूसरा, थर्ड एंड दिस इज द 4th टाइप ऑफ द क्वेश्चन, एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 6 मार्क्स। आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस टाइप के और क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप उसको प्रैक्टिस करो, देन वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।